Praise the Lord. Let's just bow our head and pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Lord, we just look unto you. प्रभु हम तेरी ओर देखते हैं। Lord, I want, Lord, you be the mouthpiece. तू मेरा मुंह बने. Yes, Yes. O Lord, help, O Lord, and let your anointing be upon every one of us. प्रभु हमारी सहायता कर और तेरा अभिषेक हम सबों पर बना रहे। Speak to us. हमसे बातचीत कर। In Jesus' name, Amen. यीशु के नाम में आमीन। The song we sang, there is victory in my Savior forever. और हमने एक गीत गाया कि हमारे उद्धारकर्ता में हमें हमेशा के लिए विजय है। And he sought me and he brought me by his precious redeeming blood. और उसने मुझे खोजा और उसका जो बहुमूल्य और छुड़ाने वाला जो लहू है उससे मुझे उसने खरीद लिया। Something where I really need to praise God, thank God, that the victory what I received through Jesus my Savior. और इस एक बात के लिए मुझे सचमुच प्रभु को धन्यवाद देना है जो विजय मैंने यीशु मसीह के द्वारा पाई है। It was, and it is like, he is the one who has really brought me close to the Father, and he found me like a lost sheep. और वो है जिसने मुझे सचमुच खोज के उस खोई हुई भेड़ के समान वो मुझे परमेश्वर के पास, पिता के पास ले आया है। Today that redeeming blood has got value and has added value to my life. और आज वो जो छुड़ाने वाला मेमने का जो लहू था उसी की वजह से मेरे जीवन में थोड़ा मूल्य है। Yeah. In today's life we go through lots of different type of struggles and temptations. और आज के जीवन में हम अलग-अलग संघर्षों से और अलग-अलग परीक्षाओं में हम पड़ते हैं। We all have different types. It changes from one person to another. और हम सब अलग-अलग परीक्षाओं से जाते हैं, वो व्यक्ति और व्यक्ति के लिए अलग-अलग है। My struggles would be different and struggle for others would be different. मेरे संघर्ष अलग है और औरों के संघर्ष अलग है। And the temptation also is different to different people in different areas. और हम सब लोग अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के प्रलोभन में पड़ते हैं। But one thing I realize is, that without the help of God, I cannot accomplish anything in my life. और एक चीज जो मैं समझ गया हूँ वो परमेश्वर की सहायता के बिना मैं मेरे जीवन में कुछ भी नहीं पा सकता। Even if I try to accomplish with my own understanding or try it out in my own ways, I will be a failure. यद्यपि मैं अपनी ही समझ के द्वारा अपनी ही कोशिशों से उसको पाना चाहूंगा, उसके बावजूद मैं एक उसमें असफल रहूंगा। If I have to have a victory or I need to win, it is only possible through my Lord. और अगर मैं उस विजय को चाहता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु के द्वारा ही संभव है। This word victory, I would not say it is myself, it is my understanding. I would say that this word victory is only from the Lord. और ये जो विजय है ये मेरे द्वारा नहीं है, मेरी समझ के अनुसार नहीं है, ये शब्द विजय जो है ये सिर्फ प्रभु के द्वारा है। Yes, that we receive it only from the Lord. और इस विजय को हम सिर्फ प्रभु से पाते हैं। In Proverbs chapter 21 verse 31, और नीति वचन उसके 21 अध्याय के 31 वचन में there it says, victory is from the Lord. और यहाँ लिखा है जय यहोवा ही से मिलती है। And in NASB translation it says victory belongs to the Lord. और दूसरे एक भाषांतर में लिखा है विजय तो यहोवा की ही का है। Because I cannot claim anything over whatever I have got or whatever I have won. It is the Lord who has given to me. It belongs to the Lord. क्योंकि अब तक मैंने जो कुछ हासिल किया है या जिस क्षेत्र में विजय पाया है मैं उस पर कोई दावा नहीं कर सकता क्योंकि वो सब प्रभु की वजह से है। Maybe it could be the position what I have today. शायद आज मैं जिस परिस्थिति में जिस क्षेत्र में हूँ वो हो सकता है। It could be the status, the life what I live, the house what I live in, the family what I have, and so on. We can keep on speaking. या शायद वो जो मेरा जीवन है या मेरा जो परिवार है या जिस घर में मैं रह सकता हूँ, जो कुछ हम सोच सकते हैं। That all, it comes from the Lord.
ये सारी चीजें प्रभु ही से आती है। You know, the meaning of victory which I read is like this. और विजय का एक अर्थ मैंने इस प्रकार से पढ़ा, It is an act of defeating an enemy or और opponent. ये एक शत्रु को या हमारे खिलाफ होने वाले व्यक्ति को पराभूत करने की एक कृति है। And in other words, it is to overcome. और दूसरे शब्दों में किसी पर ये जय पाने के बारे में है। You know, in Old Testament there was one king we read, और पुराने नियम में हम एक राजा के विषय में पढ़ते हैं, and about this king there was something which good I have taken and some bad also over it. और इस राजा के जीवन से कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें भी हम सीखते हैं। And the name of this king is King Jehoshaphat. और इस राजा का नाम है राजा यहोशाफाट। And you know, we read about him in Second Chronicles chapter 17 verse 5. और दूसरा इतिहास उसके 17 अध्याय के 5वें वचन में हम इस राजा के बारे में पढ़ते हैं। And there it is said like this: the Lord made his kingdom secure. और यहाँ यहोशापात के बारे में लिखा है कि यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया। It was the Lord who gave the kingdom to his hand, and it was the Lord who secured it for him. और प्रभु था जिसने उसके हाथ में राज्य दिया था, और प्रभु ही था जिसने उस राज्य को उसके हाथ में दृढ़ भी किया था। And later of that verse we read, he became very wealthy and greatly respected. और उसी वचन के अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं कि उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। Yes, and this is something where you know it comes from the Lord. और ये कुछ है जो प्रभु की ओर से आता है। And you know, further on after that in chapter 20 of Second Chronicles, और इसके बाद दूसरे इतिहास के अध्याय 20 में there was a incident which took place, and where he was very much afraid you know, of war and of fight. और यहाँ एक घटना होती है जहाँ उसके सामने एक युद्ध होने वाला होता है, और जिसकी वजह से वो बहुत डर जाता है। Where enemy rises against him, और एक शत्रु उसके खिलाफ खड़ा होता है। and where it says in Second Chronicles chapter 20 verse 3. और दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसका 3रा वचन, He says he was very afraid, और यहाँ लिखा है कि वो बहुत ज्यादा डर गया, and he decided to seek the Lord's advice. और वो यहोवा की खोज में लग गया। This is something, you know, which is very much needed, you know, that when we go to the Lord is there to help us out. और ये हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रभु की ओर जाते हैं तो प्रभु हर समय हमारी सहायता करने के लिए तैयार होता है। And later on in verse 20, you know, through a prophet he receives a word from the Lord. और उसके बाद 20 वचन में एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा वो प्रभु से एक वचन पाता है। Second Chronicles chapter 20 verse 15. दूसरा इतिहास उसका अध्याय 20 और उसका 15 वचन। There it says, you know, there the Lord says to him, don't be afraid, don't panic. और यहाँ यहोवा उससे कहता है कि तुम इस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। Yes, and he says you don't panic or don't be afraid of the huge army. और तुम्हारे सामने ये जो बहुत बड़ी सेना खड़ी है उससे तुम ना डरना। He says, for the battle is not yours but God's. क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। Here is something where God stands and fights and gives victory to him over that battle. और यहाँ प्रभु वहां खड़ा होकर वो खुद लड़ता है और उसको उस युद्ध में विजय देता है। In the initial days when he sought the Lord, and definitely God helped him out, and you know, it is written about him, so about his times, it is so written like this. और इस राजा के शुरुआती दिनों में वो प्रभु का, वो यहोवा का खोज करता है और यहोवा ने उसको विजय भी दिया, और इसके विषय में ये बात भी लिखी है। In Second Chronicles chapter 20 verse 30, it is so written about him that in his kingdom they enjoyed peace. और इस राजा के विषय में दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय के 30 वचन में ये भी लिखा है कि यहोशापात के राज्य को चैन मिला। There was peace at that point of time because God was there and God's hands was there upon him and his kingdom. और उस समय उस पूरे राज्य में शांति और चैन था, क्योंकि प्रभु उनके साथ था और प्रभु का हाथ उसमें था। As long as he obeyed, the peace continued in the kingdom. जब तक वो परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा पालन करता रहा, उस राज्य में शांति बनी रही। There was a point when it came into his life.
परंतु उसके जीवन में एक समय ऐसा आया, which I hope it does not come to our life, और मैं आशा करता हूं कि ऐसा समय हमारे जीवन में न आए, and even in my life. और मेरे खुद के जीवन में भी। That is a point of disobedience, और ये ऐसा समय था जब वो आज्ञा मानना उसने छोड़ दिया, where he joins living the Lord with other people, सॉरी मैडम, where he joins hands with other kings living the Lord. और जहां वो प्रभु को छोड़कर दूसरे राजाओं के साथ हाथ मिलाता है, Where he takes decision in his own understanding because he had that power in his hand. जहां वो अपने ही समझ से निर्णय लेने लगता है क्योंकि उसके हाथ में वो सामर्थ थी। And that was the end of his reign after that. और उसके राज्य का वो अंत था। That is in 2 Chronicles chapter 20 verse 37. It is written like this: because thou hast joined thyself with Uzziah, the Lord hath broken thy works. और दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और 37 वचन में ऐसा लिखा है कि इस कारण यहोवा, तूने जो अहज्या से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। That was the end of his life and his reign. और उसके जीवन का और उसके राज्य का यह अंत था। This is because he just left his trust and trusted in his own understanding. ये इस वजह से था क्योंकि उसने प्रभु से अपना भरोसा निकालकर अपनी ही समझ पर भरोसा किया। There was another person in the Old Testament named Joshua. और पुराने नियम में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था यहोशुआ। The good part of him was he always relied on the Lord. और यहोशू के बारे में अच्छी बात ये थी कि वो हर समय प्रभु पर निर्भर होता था। And if you see the initial days when there was no king, it was Joshua who was the leader of the people. और शुरुआती दिनों में हम देख सकते हैं कि यहोशू जो था, जब कोई राजा नहीं होता था तब यहोशू ही लोगों का अगुवा था। And there if you see about Joshua, the first chapter itself, God is telling not to be afraid and be courageous, and God says, no, I will be there with you. और पहले ही अध्याय में हम देखते हैं, यहोशू के पहले अध्याय में परमेश्वर उसको कहता है कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। Later on, there is something. There is a war happening, and where in Joshua chapter 8 verse 1 we read about that incident. और उसके बाद यहोशू के जीवन में इस्राएलियों के साथ एक युद्ध होता है, और यहोशू उसके 8वें अध्याय के पहले वचन में हम उस घटना को पढ़ते हैं। Then again, God is telling Joshua, don't be afraid and don't panic. तब यहोवा फिर एक बार यहोशू से कहता है, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। There was a king called King Ai, who was against the people, and he was an enemy for them. और एक आई नामक राजा था जो इनके खिलाफ था और प्रभु के लोगों का वो शत्रु था। In Joshua 8:1, it talks about that king who was against the children. और यहोशू के पुस्तक उसका 8वां अध्याय और पहले वचन में ये राजा के विषय में लिखा है जो इन पर चढ़ाई करता है। And there the Lord promised that I'll hand over, I'll give you victory and I'll hand over the king in your hand. और वहां प्रभु उनको ये प्रतिज्ञा देता है कि मैं उस राजा को और उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में कर दूंगा। And the same way as the Lord spoke, and so it happened, and Lord gave him victory as he said. और जिस प्रकार प्रभु ने कहा उसी प्रकार वो हुआ और प्रभु ने उनको जय दिया। And then later on that chapter, the last part of it in Joshua 8:23, he says that the king was captured, and later on he was hung on the tree. और जैसे प्रभु ने कहा था वैसे ही यहोशू उसके 8 और 23 में ऐसा हुआ कि वो राजा पकड़ा गया और उनको जीवित उसको वहां लाया और उसको लटका दिया गया। And later on, by this act, there was a fear all over, about the children of Israel. और क्योंकि इसराइलियों ने ये लड़ाई जीत गई थी, वो उस समस्त देश में इसराइली लोगों का एक भय सा छा गया था। There was a particular people, the Gibeonites, they were very much afraid and fear. They said, better no, we go and join hand and take the help of Joshua and his people. और उसके बाद वहां एक गिबोन नगरी के जो निवासी थे वो लोग भी बहुत डर गए। वो सोचे कि ये अच्छा होगा कि हम जाकर यहोशू के लोगों से हाथ मिला ले। And they use a tricky way, and later on they come to make a treaty, or they come with to tie up with them. और वो छल कर कपट कर ऐसा करते हैं कि वो अपने राजदूत भेजकर ऐसा सोचते हैं कि इन लोगों से हम हाथ मिला ले।
It is there in Joshua chapter 9, verse 11. और ये यहोशू उसके अध्याय 9 और 11 वचन में है। And there he's requesting, Joshua, that you make a treaty with us and you be with us, and we will work for you. और यहाँ गिबोन के निवासी यहोशू से कहते हैं कि तुम हमसे वाचा बांध लो और हम तुम्हारे दास बनेंगे। And later on, it so happened, there was other 5 kings around. When they heard about this Gibeonites tying up with Joshua, they came together and they said, "Let now something has gone wrong. Now we will have to fight against this Gibeonites." और ऐसा हुआ कि जब वहां के पास के जो 5 अलग अलग राजे थे, जब उन्होंने सोचा कि ये गिदोन के लोग जाकर यहोशू से इन्होंने हाथ मिलाया है, तो उन्होंने गिदोन पर आक्रमण किया। It was again, it is like it was initiated by a king named Adoni. और इसके बाद ये भी जो था, ये एक अदोनी सिदक नाम के राजा ने ये आक्रमण शुरू किया। Yes, of Jerusalem, and where he joined other 4 kings together, and he deployed his troop to fight against this Gibeonites. और ये यरूशलेम का राजा था जिसने और 4 राजाओं के साथ मिलकर अपनी पूरी सेना लगाई इन गिबोन नगरियों के खिलाफ लड़ने के लिए। And since Jehoshua was the leader at that time, and he had already tied up with the Gibeonites, so he had that responsibility to protect and to take care. क्योंकि यहोशू उस समय अगुआ था और उन्होंने इन लोगों के साथ संधि की थी या वाचा बांधा था, इसलिए उसकी जिम्मेदारी थी कि इन लोगों की वो सुरक्षा करे। There again, the Lord is telling to Joshua again, "Don't be afraid. I am handing them over to you." और फिर एक बार प्रभु यहोशू से कहता है कि तू इनसे मत डर, क्योंकि मैं इन लोगों को तेरे हाथ में दे रहा हूँ। These 5 kings will be under you, and you will have them in your hand. और ये 5 राजा तेरे अंदर होंगे, तेरे अधीन होंगे और तू उन पर कब्जा करेगा। In Joshua chapter 10 verse 8, it is so written, "No one of them can resist you." और यहोशू उसके 10 अध्याय के 8वें वचन में ये लिखा है, क्योंकि उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न पाएगा। Yes, and as God spoke, and so it happened, and that we read later on in Joshua chapter 10 from 12 to 14. और जैसे प्रभु ने कहा वैसे ही हुआ, वही हम यहोशू उसके 10 अध्याय के 12 से 14 वचन में पढ़ते हैं। There was a good incident which happened at that point of time. The war was not over, and they still had to win. And there, Joshua prays to the Lord, and he tells God, "Help me." और वहां एक अच्छी घटना भी हम पढ़ते हैं कि युद्ध तो समाप्त नहीं हुआ था और इसलिए तभी भी लड़ाई बाकी थी, और इसलिए यहोशू प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी सहायता कर। And then the God makes that sun to stand still, and moon also is motionless. और प्रभु उस समय उस सूर्य और चंद्र को एक समय तक वही अपने अपने जगह ठहरा देता है। And he made it so that they win, and then it sets down. और ऐसा हुआ कि वो सूर्यास्त तब तक नहीं हुआ जब तक ये लोग जीत नहीं गए थे। And you see that, and this is one incident which is recorded, and where the sun had stood in its place and did not move. और ये एक घटना बाइबल में लिखी है जहां सूर्य भी अपने जगह रुक जाता है और वो हिलता तक नहीं। God commanded the sun to stop till Israel win the battle. और प्रभु ने आज्ञा दी ताकि वो सूर्य उसी जगह थम जाए जब तक इस्राएली लोग उस युद्ध को जीत न जाए। This is all because the faith and trust that Joshua had on the Lord, and he trusted, and he knew that God will give the victory. ये सब उस विश्वास और भरोसे के वजह से था जो यहोशू ने प्रभु में रखा था, क्योंकि वो इस बात पर विश्वास रखता था कि प्रभु उसको विजय देगा। Today also we go through lots of trials, difficulties, and there are lots of spiritual warfare within ourselves and in us. और आज भी हम अलग अलग परीक्षाओं से होकर जाते हैं और हमारे अंदर भी अलग अलग आत्मिक युद्ध चलते हैं। The opposite word of victory is, और विजय का विरुद्ध अर्थी शब्द ये है, it is defeat. वो है पराभूत होना, and destruction, हारना और पूरी तरीके से विनाश होना, disappointment, निराशा, failure and frustration. असफल होना और निराशा में डूब जाना। We can just think over, no, am I in a state like this, giving up and having no hope?
और हम सोच सकते हैं, प्रभु क्या मैं आज इस परिस्थिति में हूं कि मैं हार मान चुका हूं और मेरे पे कोई भी आशा नहीं है? How many times I'm defeated, disappointed, frustrated, failed in the area of sin and different things. और पाप के क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्र में कितने बार मैं हार चुका हूं, मैं निराश हूं और मैं असफल हो रहा हूं। You know, in Psalms chapter 121 verse 1 and 2, और भजन उसके 121 के पहले दो वचनों में there the psalmist writes, you know, from where will the help come from me, for me, O Lord? और वहां वो भजनकार लिखता है कि मेरे लिए प्रभु कहां से सहायता आएगी। And there he says the help, it comes only from the Lord, and who has made the heaven and earth. और वो उसके बाद कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से ही मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। When we are down, when we really seek the Lord, the help will come because he has created me, he has created the heaven and the earth. जब हम सचमुच नीचे होते हैं और हम प्रभु को खोजते हैं, तो हमारी सहायता वही से आती है, क्योंकि वो है जिसने इस आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया है। There is a wonderful promise in Jeremiah 29:11. और यिर्मयाह उसके 29 और 11 में एक बहुत अद्भुत प्रतिज्ञा हम देखते हैं। You know, always God has good plans and for us. और प्रभु हर समय हमारे लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं रखता है। I think this morning, even when Brother Michel prayed, he quoted this word. और सुबह भी प्रार्थना करते वक्त हमने इस वचन को सुना। I have planned to give you a future with और filled मैं with, तुझे yes, sir. I have planned to give you a future filled with hope. और एक अंत में एक आशा पूरा भविष्य तुझे देने के लिए मेरी एक योजना है। Yes, we all want to win in our spiritual life. और हमारे आत्मिक जीवन में हम सब लोग विजयी होना चाहते हैं। Even I desire that life, you know, like this. और मैं भी ऐसा ही जीवन चाहता हूँ। You know, Paul says in 2 Timothy 4:7. और पौलुस दूसरा तिमोथी उसके चौथे अध्याय के 7वें वचन में कहता है, He says three things there. और वहां वो 3 बातों को कहता है। He tells, I compete, पहले तो वो कहता है कि वो लड़ रहा है, I compete well. मैं अच्छी कुश्ती लड़ता हूँ। And second, he says, I have finished the race. और उसके बाद वो कहता है कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर लेता हूँ। And third, he says, I have kept the faith. और आखिरी में वो कहता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की है। When I was seeing this, I said, do I compete well? और ये सब देखने के बाद मैं सोच रहा था, क्या मैं एक अच्छी दौड़ दौड़ता हूँ? Or am I filled with, you know, pride and jealousy, or thinking about other things and thinking about other people's success? Do I look in that way? या मैं घमंड से या ईर्ष्या से भरा हुआ हूँ और दूसरों की सफलता को देखकर मेरे अंदर ईर्ष्या है? क्या ये सारी चीजें मेरे जीवन में है? And second thing is, do I have the aim to finish the race? और दूसरी बात, क्या मेरे पास ये उद्देश्य है कि मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूँ? Or because of some problems or struggles, you know, finding things not well, I stop halfway. या किसी समस्या की वजह से, किसी संघर्ष की वजह से, या चीजें आसान नहीं है इसलिए मैं बीच में ही छोड़ देता हूँ? And the third thing is, do I have the faith that I will finish it well? और तीसरा, क्या मेरे अंदर ये विश्वास है कि मैं अपनी दौड़ को अच्छे से पूरा करूंगा? Yes, I need to build that faith that I will finish it well in Jesus Christ. और मेरे अंदर ये विश्वास तैयार होना जरूरी है कि हाँ, मैं यीशु मसीह के अंदर अपनी दौड़ को अच्छे से पूरा करूंगा। And later on, there is one verse which Paul quotes in 1 Corinthians 9:24. और आगे पहला कुरिन्थी उसके 9 अध्याय के 24 वचन में एक पौलुस एक वचन को कहता है, And where he says that all are running a race and they are competing, and only one receives the prize. और वहां पौलुस कहता है कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। But he says later on, you know, the last part of it says, so run to win. पहला कुरिन्थी 9:24 के आखिरी वचन में पौलुस कहता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। That is what I should long for, that I should win and I should have that victory over my life. और मेरे अंदर भी यही एक चाहत होनी चाहिए कि मुझे दौड़ना है और मेरे जीवन में मुझे जयवंत होना है। And another things which he quotes in Acts chapter 23 verse 1. और प्रेरितों के काम उसके 23 अध्याय के पहले वचन में There he's telling, you know, he's telling in the council, telling brothers and sisters, I have lived my life, and where he's boldly telling that I have lived a life with clear conscience before God.
और वो महासभा के सामने खड़ा होकर बड़े ही हियाव के साथ इस बात को कहता है कि मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। And to this day, he says at the end, और वो कहता है कि मैंने आज तक, this is the life of victory I need to live, and I need to envy that, and live a life like that. और ये एक जीवन है विजय का जीवन, जो जिसके बारे में मेरी चाहत होनी चाहिए, एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये जीवन चाहिए। It is like I put down myself and keep the Lord always first. इसका मतलब मैं अपने आप को नीचे कर हर समय प्रभु को सबसे आगे रखता हूँ, पहले स्थान पर रखता हूँ। Just like Paul says in Galatians chapter 2 verse 20. जिस प्रकार पौलुस गलातियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 20 वचन में कहता है। It is again he quotes three things over there. फिर एक बार वहां पौलुस तीन चीजों को कहता है। He says, I have been crucified with Christ. One. पहले तो वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। And second, he says, it is no longer I who live. दूसरा वो कहता है अब मैं जीवित न रहा। And third, he says, it is Christ who lives in me. तीसरा वो कहता है मसीह मुझ में जीवित है। This is something which I have to ask to myself. और ये एक सवाल है जो मुझे अपने आप से करना है। Have I been crucified with Christ? क्या मैं यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ? Am I living? The old man is still living inside me. क्या मेरे अंदर वो पुराना मनुष्य आज भी जीवित है? Or does Christ live in me? या मसीह यीशु मुझ में जीवित है? This is something, to say that I should not exalt myself, always humble before the Lord. और मुझे हर समय अपने आप को बढ़ाना नहीं है, हर समय प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करना है। James 4:10 it says, humble yourself before the Lord and he will exalt you. और याकूब 4:10 में लिखा है कि प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करो और वो तुम्हें ऊपर उठाएगा। In other words, God will exalt and give victory. इसका मतलब प्रभु हमें ऊपर उठाकर हमें विजय देगा। And the same thing is in 1 Peter chapter 5 verse 6. और यही बात पहले पत्रस उसके 5 और 6 में भी लिखी गई है। Where he says, humble yourself therefore under the mighty hand of God. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। Yes, and it is God who gives the victory to us. और प्रभु है जो हमें विजय देता है। It is in 1 Corinthians 15:57. और पहला कुरिन्ती उसके 15 के 57 वचन में, where he is thanking God and is telling who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. और वहां वो परमेश्वर को धन्यवाद देकर कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। There is a song what we sang, I am thine, O Lord, I have heard your voice and your love. और हमने एक गीत आज गाया कि प्रभु मैं तेरा हूँ, मैंने तेरी वाणी सुनी है और तेरे प्रेम को देखा है। I want to long, it says, but I long to rise in the arms of faith. और हमारे अंदर ये तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु विश्वास के साथ मैं विश्वास की बाहों में मैं बढ़ना चाहता हूँ। And where he is telling now, draw me nearer, nearer. और फिर वो कहता है प्रभु मुझे तेरी ओर खींच ले। And another part where it says, consecrate me to thy service, Lord. और एक और वचन, एक और पंक्ति में ऐसा लिखा है कि प्रभु तेरे सेवा के लिए मुझे तू समर्पित कर या अलग कर। Where it is said, no, it is not concentrate for the service, but he is asking that by the power of grace divine. और वो ये नहीं कहता सिर्फ कि प्रभु तेरे सेवा के लिए मुझे अलग कर, पर वो कहता है प्रभु तेरे उस अनुग्रह के सामर्थ्य से मुझे अलग कर। With that power only I can stand. सिर्फ उस सामर्थ्य के द्वारा ही मैं खड़ा हो सकता हूँ। Where my soul, where myself, I can put down, I can forget, and I can look at that steadfast hope which is there with you. और जहां मेरे प्राण को मैं नीचे डालकर उसको भूल कर मैं उस आशा को देख सकता हूँ जो तुझसे प्राप्त होती है। And my will be lost in time. और मेरी जो ये स्वयं की जो इच्छा है वो तेरी इच्छा में खो जाए। Yes, I completely kill myself and I be lost in you, O Lord. पूरी तरीके से खुद को मारकर मैं तुझ में पूरा होता हूँ या खो जाता हूँ। And finally one thing which I would like to say and end, और अंतिम में एक बात कहकर मैं अंत करना चाहूंगा। It is only the Lord who gives us victory over everything upon everything.
वो सिर्फ प्रभु ही है जो हमें सारे चीजों में जय दे As सकता है। written in Romans chapter 8:31, if God is for us, who can be against us? और जैसा रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 31 वचन में लिखा है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन All हो should say सकता है। amen. God is there with us. और हम सब इस चीज के लिए आमीन कहें कि हाँ, प्रभु हमारे साथ है। Yes, we can win. We have the victory. We have the Lord. हाँ, हम जीत सकते हैं, हम विजय पा सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रभु है। Yes, finally, victory comes from our Lord through Jesus Christ. आखिरी में विजय सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर से यीशु मसीह के द्वारा आती है। In Jesus' name, amen. यीशु के नाम से आमीन। यस डियर फैमिली, प्रभु का बहुत धन्यवाद भाई और बहनों, जो वचन आपने सुना है उसके लिए। सच में परमेश्वर अपने उस प्रकाश को हमारे जीवन के ऊपर लाता है ताकि हम अपने जीवन में उस छुपे हुए अंधकार को देखें। कई बार हमें लगता है कि हम उस ज्योति में चल रहे हैं, नया जन्म पाया है हमने, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर कई बार उस प्रकाश को और अधिक हमारे जीवन में उन वचनों के द्वारा, प्रकाशनों के द्वारा लाना चाहता है ताकि हम और अधिक हमारे जीवन के अंधकार को देखने पाए। और इन दिनों के अंदर मैं सोच रहा था, मैं अपने जीवन के बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर ने कुछ क्षेत्रों को मेरे जीवन में दिखाया कि जैसे कि हम सभी लोग यीशु मसीह के उस भरपूरी के जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। हर रीति से हम चाहते हैं कि परमेश्वर का जो संपूर्ण जीवन है, संपूर्ण स्वभाव है, उसके अंदर हम आराम करें या विश्राम करें। लेकिन कई बार होता है कि हम उस जीवन तक नहीं पहुंच पा रहे, कुछ ऐसी बाधाएं हैं। और मैंने अपने जीवन के अंदर इस बाधा को देखा, कि इस चीज को देखा जो मेरे जीवन में रोकने वाली मुझे लगी, कि जहां पर कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन का नियंत्रण खुद से करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर। और प्रभु ने इस प्रकाश को मेरे जीवन के ऊपर डाला कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है किरण, जहां पर तू अपने जीवन को स्वयं से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। और इस चीज ने सच में मुझे बहुत ही जैसे कि एक ऐसी दशा में लाकर छोड़ा कि जहां मुझे लगा कि बहुत अधिक जरूरत है हमारी या मेरी, कि मैं प्रभु को अपना पूर्ण नियंत्रण हर एक एरियाज में सौंपूं। और एक वचन जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिसने मुझे पूरे सप्ताह के दौरान बहुत ही आशीष दी और मुझसे बात की है, वो है मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 39 वचन। मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसका 39 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह कहता है कि जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। और इस वचन ने मुझे निरंतर मुझसे बात किया। यहाँ पे लिखा है कि जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा। और मैंने यहाँ पर देखा, अपने जीवन की एक जरूरत को देखा कि मैं कहीं ना कहीं पे अपने जीवन के संबंध में जो भी नियंत्रण है वो मैं खोना नहीं चाहता हूँ। मैं हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर की इच्छा तो करना चाहता हूँ, परमेश्वर के कामों को मैं अपने जीवन में चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे लिखा है कि जो उसको मेरे कारण खोता है वह उसे पाएगा। परमेश्वर का जीवन कौन पाता है? जो उसे खोने के लिए तैयार रहता है, विलिंग टू बी, वो उसको खोने के लिए तैयार। प्रभु ने इस बात को बताया कि कहीं ना कहीं मुझे अपने आत्मिक जीवन के अंदर उस नियंत्रण को खोने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है मेरे जीवन के अंदर। मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर मुझे परमेश्वर का स्वर्गीय जीवन मेरे जीवन के अंदर चाहिए तो मुझे अपने स्वयं का, अपने खुद ही का जीवन उसे लूज करना या उसे खोने के लिए तैयार होना मुझे बहुत जरूरी है। पिछले दिनों में मैंने देखा कि बहुत सारी चीजों को मैं अपने समय में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना मेरे विचार या अपने परिवार के अंदर है या काम की जगह पर है, मैं बहुत सारी चीजें अपने टाइमलाइन में करने की कोशिश कर रहा था। मैं देख रहा था कि यहाँ तक कि जो अंतिम परिणाम जो होने चाहिए, जो आउटकम होने चाहिए, उसे भी मैं अपने आप से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। और अंत में रिजल्ट ये आ रहा था कि मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, बहुत ज्यादा मैं अपने आप के ऊपर स्ट्रेस देख रहा था। और कहीं ना कहीं प्रभु ने इस वचन से बात किया कि तू उस नियंत्रण को खोने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु को नियंत्रण देने के लिए सही में प्रभु मैं नहीं तैयार हूं इस प्रकार से। और प्रभु ने इस चीज को दिखाया 2 एरियाज मेरे जीवन के अंदर कि आई एम कंट्रोलिंग माई लाइफ, कि मैं अपने जीवन को और औरों के जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर रहा हूं। ये परमेश्वर ने इस बात को मेरे जीवन में दिखाया। और दूसरी चीज कि मैं और परिस्थितियों से और स्वभाव से मैं बहुत बार
नियंत्रित हो रहा हूँ। कहीं ना कहीं हम इस दो प्रकार के बातों के अंदर आते। पहला तो या हम स्वयं को या औरों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, या दूसरा हम स्वयं कोई भय से, चिंता से हो सकता है, या किसी भी प्रकार के मनुष्य या बातों से हम प्रभावित हो रहे हैं। और इस चीज को मैंने देखा कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर, अपनी बातों के अंदर नियंत्रण ना देते हुए अपनी ही बातों के अंदर उसे फिट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि मुझे परमेश्वर की इच्छा और योजना में अपने आप को लाना चाहिए। और इस चीज को मैंने देखा कि क्या मेरे जीवन की सारी बातें परमेश्वर से संबंधित थी। जो भी मैं करता हूँ, परमेश्वर को नियंत्रण देना मतलब क्या मैं परमेश्वर के बारे में सोच पाता हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं करने जा रहा हूँ, या जो भी लोग मेरे साथ कर रहे हैं, या कोई भी परिस्थिति हो, क्या मैं उसको परमेश्वर की उपस्थिति में लाकर उसको देख पा रहा हूँ, या मैं अपने आप से उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने देखा मैं असफल रहा। मैं बहुत सारी चीजें परमेश्वर के बिना, उसकी उपस्थिति के बिना उसको मैं देखने की कोशिश कर रहा था। और मैंने देखा प्रभु मेरी बहुत अधिक जरूरत है कि प्रभु मैं प्रतिदिन, प्रभु मैं तुझे अपने जीवन को पूरी तरह से सौंपना चाहता हूँ। एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8 वचन। सॉरी, हाँ, वहां पे निकोदेमुस के बारे में लिखा हुआ है। जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आते, वहां लिखा है कि 8 वचन, हवा जिधर चलती है, 7 वचन से पढ़ेंगे, अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तो उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती। जो कोई आत्मा से जन्मा वैसा ही है। इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो एक चीज मेरे जेब में है कि यहाँ पर यीशु मसीह उसको कहता है कि क्या जहां पर वो हवा चलती, क्या उसका इधर उधर जो चलती उसका तू शब्द सुन पाता है। दूसरे अनुवाद में लिखा है क्या उसकी दिशा जो है, वो जो दिशा जो है, वो जो दिशा उसको क्या तुम ये कर पाते हैं, तुम उसको निर्धारित कर पाते हो। और मैं देखता हूँ कि कोई मनुष्य उस हवा की दिशा को निर्धारित नहीं कर सकता या उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन कई बार हमें सत्य को जानते हुए हमारे जीवन और परिस्थितियों की जो दिशा जो होती है उसको हम कहीं ना कहीं पे निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। और मैंने इस बात को देखा, उस जरूरत को मैंने अपने जीवन के अंदर देखा कि प्रभु कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन में उस दिशा को निर्धारित कर रहा हूँ कि ये दिशा यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर को नियंत्रण सौंपने की जरूरत है। और कई बार जब मैं परमेश्वर को नियंत्रण नहीं सौंपता हूँ, कई बार मैं उस ट्रेजेडीज में आता हूँ। So many times when I'm not able to surrender total control to God, मैं देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के विल से बाहर में करने लग जाता हूँ। और एक चीज जो मैंने देखा, मैं अब्राहम के जीवन के बारे में सोच रहा था कि अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया। हम उस वचन को नहीं पढ़ेंगे, हम जानते हैं कि एक प्रतिज्ञा, एक वायदा परमेश्वर ने उसको दिया कि उसको एक संतान होगी। बहुत आनंदित हो गया। लेकिन उसके बाद वो देखता है कि अपने प्रयत्नों से, अपने नियंत्रण से उस प्रतिज्ञा, उस वायदे को पूरा करने का वो प्रयास करता है। जैसे हमने अभी सुना कि विजय केवल परमेश्वर से है, लेकिन जो यहाँ पर अब्राहम जो है वो सारे प्रयत्न करता है, नियंत्रण अपने हाथ में लेता है। और अपने नियंत्रण से वो क्या पैदा करता है, वो एक इश्माएल पैदा करता है। और प्रभु ने इस वचन से मुझसे बात की कि कई बार हम जो है, अब्राहम ने तो एक ही इश्माएल को पैदा किया, लेकिन कई बार जब मैं परमेश्वर को नियंत्रण नहीं देता हूं, अपने समय में काम करने की कोशिश करता हूं, तो मैं कई सारे इश्माएल को पैदा करता हूं जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं होते हैं। और मैंने देखा कि प्रभु प्रतिदिन मेरे जीवन में, जब मैं तुझे नियंत्रण नहीं देता हूं, मेरे घर में, मेरे फाइनेंसिस में, मेरे जीवन के हर एक एरियाज में, मैं एक इश्माएल को पैदा करने जा रहा हूं प्रभु, जहां परमेश्वर की इच्छा नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया है। हम देखते हैं कि कई बार शाऊल राजा के बारे में हम पढ़ते हैं कि शाऊल राजा जो था वो कहीं ना कहीं जब मैं नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं, मैं अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता हूं। उस मुट्ठी से मैं कहीं ना कहीं अपने नियंत्रण को जाने नहीं देना चाहता हूं। और वहां लिखा है शाऊल राजा के बारे में, पहला शमूएल उसका 13 अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 3, किंग सॉल के बारे में यहाँ पे लिखा है कि जब हम इसको जानते हैं कि जब उसको राजा बनाने के लिए आए और उसने एक अनाज्ञाकारिता किया, वो कहीं ना कहीं अपने पद को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था। उसने अपने जो राजा का जो स्थान था उसको वो जाने देना नहीं चाहता था। एक वचन वहां पे बहुत अच्छा लगा मुझे, 8 वचन में, फर्स्ट सैमुएल 13:8 में लिखा है कि और शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन के बाद जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। और ये वचन जो लिखा है कि लोग उसके पास से इधर होने लगे,
इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वो लोगों का आदर सम्मान या उनका ओपिनियन इतना अधिक चाहता था कि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं बढ़ना चाहता। अपने नियंत्रण, मैं देख रहा हूँ कि कई चीजें मैंने अपने मुट्ठी में, जैसे शाऊल राजा ने उस लोगों के ओपिनियन को अपने हाथों में पकड़ के रखा था। उसने पूरी तरह से कि परमेश्वर जो है वो मुझे राजा बनाया है। उस आशीषों को कई बार हम मुट्ठी में इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करना भूल जाते हैं, जैसे शाऊल राजा भूल गया। और ये मुझसे बात करता है कि कितना अधिक आज जरूरत है भाई और बहनों की हम अपना पूरा नियंत्रण, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे वो हमारे एम्बिशंस हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी रीत में हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपना पूरा नियंत्रण हम परमेश्वर को दें। हम देखते हैं कि जब मैं देखता हूँ अपने जीवन को, कि जब मैं अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ, एकदम मेरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ मैं पाता हूँ। मैं देखता हूँ हर रीति से, मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पर प्रभु मैं अपने जीवन को नियंत्रित करके, प्रभु मैं संघर्ष में हूँ, प्रभु मैं कितना अधिक प्रयास कर रहा हूँ प्रभु, बट मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मैं विजय तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मैं बहुत सारे चीजों को कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु इस बात को आज हमको दिखाना चाहता है कि आज हम क्या स्वयं को नियंत्रित कर रहे हैं, क्या हम लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं, हमारे परिवार में हो सकता है, काम की जगह पर हो सकता है, या फिर हम परिस्थितियां लोगों के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। तो हम उस कैद खाने में हम हैं, कुछ जंजीरों में है। परमेश्वर आज हमको बुला रहा है। परमेश्वर ने इस चीज से मुझे आजाद किया। जब मैं कल इस बात को सोच रहा था कि प्रभु कितना अधिक जरूरी है, प्रभु मैं पूरा नियंत्रण मेरे जीवन का प्रभु तुझे सौंप दूं प्रभु जी, और पूरी तरह से एक सरेंडर लाइफ में प्रभु जीना चाहता हूँ मेरे जीवन के अंदर। चाहे हमारे जीवन के अंदर, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बंद मुट्ठी है और एक खुला हुआ हाथ है। और जब मैं अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको मैं अपने मुट्ठी में बंद किए हुए हैं। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। चाहे वो मेरी रेपुटेशन हो सकता है, मेरा खुद का नाम सम्मान, मेरी आकांक्षा, मेरा करियर हो सकता है कि मैं एक बहुत अच्छा कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पैसों के संबंध में हो सकता है मेरे पैसे कैसे मैं इस्तेमाल करना चाहिए, या कई बार हम ग्रसित है उस चिंताओं से, उस भय से कि प्रभु कैसे क्या होगा, प्रभु किस रीति से होगा। कई बार उस अधिकारों को मैं पकड़े हुए, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा मेरा सौभाग्य है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन परमेश्वर आज हमको इसलिए बुला रहा है कि हम अपने मुट्ठी को आज खोल दे और परमेश्वर के हाथ में। यदि आज हमारे किसी भी क्षेत्र के अंदर भाई और बहनों हमारी मुट्ठी आज बंद है, हमने जकड़े रखा है, उस कंट्रोल को अपने पास रखा है, आइए आज यीशु मसीह के उस छिदे हुए हाथ को देखें, जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया, अपना एक लहू का बूंद आखिरी उसने मेरे लिए दे दिया। उस हाथों के सामने क्या मैं अपने हाथ, अपने मुट्ठी को नहीं खोल सकता, सोच के कि प्रभु तूने अपना सब कुछ दे दिया, क्या मैं तेरे हाथों में सुरक्षित नहीं हूं प्रभु? मैं अपने जीवन को, अपने भविष्य को प्रभु पूरी रीति से तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूं। और प्रभु हमें सच में अगुवाई करे, मदद करे कि हम अपने हाथों को खोलकर परमेश्वर को हम पूरी रीति से अपने जीवन को सौंपे। और अंत में एक चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि इस उदाहरण से मैं बहुत ही आशीष हुआ। जो मैं सोच रहा था कि कई बार होता है कि इस उदाहरण में स्लाइड को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस बात को जब हम फोटोग्राफी करते हैं, इस बात को जब मैं सोच रहा था, और एक अलग से मैंने इस चीज को देखा जब मैं इस बारे में सोच रहा था कि जब हम लोग किसी चीज को फोटोग्राफी करते हैं तो उसके ऊपर अलग अलग, आपने देखा होगा शादियों में अलग अलग फंक्शन के अंदर एक बड़े बड़े एक रिफ्लेक्टर लाइट इसको बोलते हैं। वो रिफ्लेक्टर क्या करता है कि जो चीजें, जो वहां पर मनुष्य ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर अपने प्रकाश को डालता है ताकि उसकी सुंदरता को वो बढ़ा सके, उसकी बहुत ही शोभा को बढ़ा सके। और ये मैंने अपने जीवन में देखा कि यदि मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप देखिए अपने जीवन को टेबल में बैठाकर, मैं और मेरे परिस्थितियां, चाहे कितना भी लोगों ने बुरा किया हो, चाहे हमें नौकरी से निकाला गया हो, चाहे लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया हो, चाहे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, बीमारियों से हम गुजर रहे हैं, सोच के देखें कि उन परिस्थितियों में हम निराश है, पूरी तरह से हताश है। लेकिन हम देखें कि अगर हमारे जीवन के अंदर ये रिफ्लेक्टर काम नहीं कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्टर जो है परमेश्वर की सर्वसत्ता, यह सर्वशक्तिमान जो है, और परमेश्वर की इच्छा जो हर बातों मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है, उसको यदि हम नहीं देख पा रहे तो हम तुरंत ही बहुत जल्दी निराश हो जाएंगे। हम अपने जीवन को कोसेंगे, हम कुड़कुड़ाएंगे, हम पूरी तरह से उसको हम शिकायत करेंगे, क्योंकि हम उस रिफ्लेक्टर से अपने आप को नहीं देख पा रहे। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रकाश पड़ता है
वो है परमेश्वर की सामर्थ का। और मैं चाहता हूं कि प्रभु हम सबों को हमारी आंखों को खोले, ताकि हमारी परिस्थितियों में हम निराश ना हो। हम जहां पर भी हताश या गिर रहे हैं हमारे पापों के अंदर, या कहीं पर भी हम निराश हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज उस रिफ्लेक्टर को हम देखें। उसके वो एक वचन वहां पे लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में इस प्रकार लिखा है कि उसके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार हमारे ऊपर प्रकट होता है। एक अलग अनुवाद में लिखा है, दूसरे इंग्लिश अनुवाद में, कि इस प्रकार परमेश्वर की महिमा हम पर रिफ्लेक्ट होती है। मतलब परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा, उसकी सर्वसत्ता हमारे जीवन की परिस्थितियों में रिफ्लेक्ट होने पाए, रिफ्लेक्टर की तरह। और हमेशा परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में, हम हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नुकसान कोई। प्रभु मैं चाहता हूं अपना नियंत्रण तुझे इस प्रकार में दे पाऊंगा, जब मैं देखूंगा हर रीति में प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, प्रभु तू सब पर प्रभुता करता है। एक अंतिम वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, और मैं उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसका 20 वचन, ये था यूसुफ के जीवन का रिफ्लेक्टर। मैं ये देखता हूं कि ये यूसुफ के जीवन का रोमियो 8:28 था। इसको देखते हम पढ़ते, जब उत्पत्ति 50 उसका 20 वचन, यहाँ पे लिखा है कि यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों का प्राण बचे। और 21 वचन भी हम पढ़ेंगे, इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनकी समझा बुझाकर शांति दी। कितना अद्भुत है! परमेश्वर हमको चाहता है कि यूसुफ का रिफ्लेक्टर देखिए, वो परमेश्वर की प्रभु सत्ता, प्रभु की योजना को उन कठिन हालातों में देखकर भी कड़वाहट से नहीं भरा, और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और वहां पे लिखा है कि 21 वचन में कि उनको समझा बुझाकर उसने उनको एनकरेज किया, कंफर्ट किया, शांति दिया। यही परमेश्वर की भाई और बहनों हमारे जीवन में इच्छा है कि हम अपने नियंत्रण को छोड़े, हम परमेश्वर की सत्ता को हमारे जीवन के ऊपर, उसकी विल को देखें, ताकि परमेश्वर हमें इस प्रकार आशीष दे, ताकि हम औरों के लिए शांति का कारण बन सके। और हम उस परिस्थितियों में सुंदर निखर कर आएंगे जब हम परमेश्वर के रिफ्लेक्टर से अपने हालातों को देखेंगे, और तब हम पूरी तरह से प्रभु को नियंत्रण दे सकेंगे। प्रभु हम सबों की सहायता करे कि प्रभु को हम पूरा नियंत्रण सौंप सके। कोई भी एरियाज में हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु किन क्षेत्रों के अंदर, प्रभु मेरे गुप्त जीवन में, पारिवारिक जीवन में, प्रभु या नौकरी के स्थान पर मैं अपने आप पर नियंत्रण रखे हूँ। मे लॉर्ड हेल्प अस कि पूरी तरह से वो नियंत्रण, वो अद्भुत जीवन जो यूसुफ यहाँ पर कहता है, उस प्रकार का जीवन हम जी सके। प्रभु हम सबों को मदद करे और सहायता करे। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ प्रभु का अनुग्रह के लिए, और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सुंदर अवसर के लिए, और जो भी वचन हमने सुना उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। I praise God for this time, for this opportunity and the word that we heard today. मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसे परिस्थितियां आती हैं, ऐसे कुछ समय आते हैं जब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, या फिर क्या सही है क्या गलत, ये समझ नहीं आता। I believe that all of us go through such times when there are situations in our life where we are not able to understand what we should do, what is right and what is wrong, and what is the course of action that we should take. कई बार हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर का जवाब साथ साथ नहीं मिलता। Sorry sister, can you repeat? कई बार हमें परमेश्वर से जवाब साथ साथ नहीं मिलता है। Many times we don't get an answer from God clearly. और उनकी योजनाएं हमें समझ में नहीं आते। And we are not able to understand God's plan. परमेश्वर से जवाब मिलने में भी कई बार हमें लंबे समय भी लग सकते हैं। Many times it also happens that it takes a long time to get an answer from God. और ऐसे परिस्थितियों में हम अक्सर बेचैन हो उठते हैं। And in these situations we often get restless. हम अशांत होकर इधर उधर देखने लगते हैं कि कौन हमें सही निर्णय लेने में मदद करे। And in this restlessness we start looking we'll start looking and thinking that who will be able to help us in this time. सही गलत का निर्णय करने के लिए कई बार हम अपने दोस्तों या करीबी लोगों से भी अपने समस्याओं के बारे में बातें करते हैं। And many times in order to decide that what is right and what is wrong, we seek counsel from our friends as well. और सबसे ज्यादा जो है हम करते हैं वो खुद का समझ का सहारा ले बैठते हैं।
And the one thing that we rely on the most is that we try and rely on our own understanding. परमेश्वर के संतान होने के नाते शायद हम हर समय यही चाहते होंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करें. As God's children, we always have this desire that we don't want to go against God's will or do something that is against God's will. बहुत समय परमेश्वर हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा समझने की गलती कर देते हैं. But many times we make the mistake and we confuse our own will with God's will. और यही गलती मुझसे भी हुई थी. And I also made the same mistake. शादी से पहले की बात है. And this is something that happened before my wedding. जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रही थी और साथ ही अपने भविष्य के कई विषयों के बारे में जैसे कि जीवन साथी का चुनाव, नौकरी या फिर कई ऐसे विषय के बारे में मैं गंभीरता से सोचने लगी थी. After my graduation, as I was considering marriage and my future job and many things related to my future as I was considering, उन दिनों मैंने अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय लिए थे. those days I had taken some wrong decisions in my life. हालांकि मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं अपने जीवन में आपकी इच्छाओं के विरोध में कुछ भी नहीं करना चाहती. Though I used to think that, Lord, I don't want to do anything that is against your will in my life. क्योंकि मेरे माता पिता ने बचपन से मेरे अंदर एक बात को डाल रखे थे कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कुछ करते हैं तो उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं होती और हम उसमें सच्ची आनंद नहीं पा सकते. Because right now, since my childhood, my parents had drilled something in my mind that if we do something that is not in the will of God, God won't bless it and we will not have joy when we are doing that. तो मेरे अंदर में ये डर हमेशा रहता था कि मुझे प्रभु के इच्छा के विरोध कुछ नहीं करना. And that's why I always had this fear in me that I don't want to do anything that is against the will of God. पर फिर भी मुझसे गलती हुई. मैंने अपने जीवन में कुछ गलत फैसले लिए. In spite of that, I did make a mistake and I took some wrong decisions. I made some wrong decisions in my life. ये एक बड़ा सवाल है कि ये सही फैसला लेने में मैं कहाँ चूक गई. And this is a big question that where did I make a mistake while when I made that wrong decision. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सही समय में प्रभु कुछ ऐसी परिस्थितियों को खड़ा किया ने मुझे स्पष्ट रूप से समझाया कि मेरी बच्ची तुम जो अपने बारे में सोच रही हो दरअसल वो तुम्हारी खुद की सोच है, तुम्हारी खुद की इच्छा है, पर मेरी योजना तुम्हारे लिए ये नहीं. And I thank God that God brought about such situations in my life that I was able to see clearly that God spoke to me that the things that whatever I am thinking about, the decisions that I am taking are wrong, and God showed me that my own desire is the thoughts that I have are my own desire, that is not God's will. बस प्रभु ने मेरे सामने इतना ही प्रकट किया था. And that was what God had revealed to me. प्रभु ने जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं किए या फिर मेरे सामने कोई दीवार खड़ा नहीं कर दिया था कि मैं अपनी योजना में आगे ना बढ़ पाऊं. God did not forcefully impose his will on me, or he did not place any obstacles in my course that I will stop doing my own will. पर उन्होंने अपनी मन की बातें मेरे सामने में प्रकट किया. मेरे सामने में दो ऑप्शन रखे. But God revealed his thoughts to me in my heart, and he placed two options in front of me. जैसे कि हम व्यवस्था विवरण उसका अध्याय का 15 से पढ़ते हैं. Sister, can you repeat the verse? जैसे कि हम व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 15 वचन से पहले आगे पढ़ते हैं. In the book of Deuteronomy, chapter 30, from verse 15 onwards. वहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो इस्राएलियों के सामने में दो ऑप्शंस रखते हैं कि जो है एक ऑप्शन जीवन का और मृत्यु का, लाभ का और हानि का. Just like God places an option before the Israelites that he sets before them life and death, prosperity and adversity. उसी तरह से उस दिन परमेश्वर ने मेरे सामने में दो ऑप्शन रखे कि पहला ऑप्शन था कि ये जानने के बाद भी कि
मैं अपने बारे में जो कुछ सोच रही हूँ वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, क्या फिर भी मैं अपने उस फैसले में आगे बढ़ूं? In the same way, God also set two options in front of me, and one of those was that once I find out that this is not God's will, और दूसरा ऑप्शन will ये I still continue to do what I want to do? और दूसरा ऑप्शन ये था कि सभी फैसलों को यीशु के क्रूस के तले त्याग दूं और उनके इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूं। And the second option was that I crucify all my own desires and my own plans, and I live my life according to what God wants. प्रभु ने मुझे सहायता किया और मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। And God helped me and I decided to do the second option. मैं घुटने पे गिरी और प्रभु से माफी मांगी। मैं बहुत रोई कि प्रभु मुझे माफ कीजिए कि मैंने आपकी इच्छाओं को नहीं पाया और खुद की इच्छाओं में उसको आपकी इच्छा समझ के आगे चलती रही। And I went down on my knees and I prayed and I cried out to God and I asked for forgiveness that I thought that my own will is God's will and I was continuing in a wrong course of action. सवाल अभी भी यही रहता है कि मैंने गलती कहाँ की थी। But even now the question remains that where did I go wrong? जबकि मैं प्रार्थना करती थी कि मैं आपकी इच्छा के विरोध में कुछ नहीं करना चाहती, पर फिर भी मैं चूक कैसे गई। Even though I was praying that Lord, I don't want to go against your will, why did I make this mistake? मेरी गलतियां थी कि मैंने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा समझ बैठी और my mistake was that I was considering my own will, my own desire to be God's will. और मैंने फैसला लेने से पहले परमेश्वर की अनुमति नहीं ली, बल्कि उन्हें अपना फैसलों के बारे में बताया। And before deciding, I did not ask God for his permission. Instead, I decided and I told God what I was going to do. जबकि हमारे परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं, पर फिर भी मैं उनको बताने की मूर्खता की। Whereas God is an all-knowing God who knows everything, yet I was foolish enough to tell him what I was going to do. और उन फैसलों के बारे में मैं प्रार्थना करती रही और परमेश्वर से मांगती रही कि प्रभु उन पर आशीष दीजिए। And I continued in those decisions and I was asking God that God would bless my own decisions. जब मुझे ये पता चला, प्रभु ने मेरे सामने में प्रकट किया कि वो इच्छा दरअसल मेरी खुद की है, मेरी योजना है, वो परमेश्वर की योजना नहीं है, तब मुझे अपने आप से मैं अपने आप पर गुस्सा होने लगी, मैं अपने आप को दोष देने लगी। And when I found out that the decisions that I was making, that was my own desire and my own will, and it was not God's will, I got very angry at myself. फिर मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, मैंने अपने समय क्यों बर्बाद किए? आपकी इच्छा को जाने बिना मैंने अपने जीवन के कितने समय बर्बाद किए कि ये जानकर इच्छा के अनुसार चल रही हूँ। Then I started asking God, Lord, why did I waste so much time in my life that I went on my own desire and I thought that I was doing your will? फिर प्रभु का वचन मुझे धीरे धीरे समझाते रहे, मुझे प्रभु अपनी शांति मेरे दिल में दिए। और जैसे कि भजन संहिता 119 का 7 में लिखा है, दाऊद वहां पे लिखते हैं कि मेरे जीवन में दुख आए, जो दुख आए वो भलाई के लिए ही आए, ताकि मैं प्रभु के विधियों को सीख सकूं। And then God started revealing to me slowly, and then I learned, as it says in Psalms 119, sister, verse 7. Psalms 119:7. I shall give thanks to you with uprightness of heart when I learn of your righteous judgments. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन दिनों प्रभु अपने एक वचन से मेरे दिल को बदला और आगे मुझे कैसे चलना चाहिए वो मुझे दिखाया। और वो वचन है विलाप गीत उसका 3 अध्याय 26 से लेके 29वां वचन। And I thank God that he showed me his word and he encouraged me, and that verse is from Lamentations chapter 3 verse 26 onwards. यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है,
पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, वो ये जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर ये बोझ डाला, वो अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। Lamentations chapter 3 verse 26 to 28. It is good that he waits silently for the salvation of the Lord. It is good for a man that he should bear the yoke in his youth. Let him sit alone and be silent, since he has laid it on him. उन दिनों जब मैं बहुत परेशान हुई, बहुत मैं रो रही थी कि मैंने अपने जीवन में बहुत कीमती समयों को यूं ही नष्ट किया और इन समयों को मैं और अच्छे से बिता सकती थी, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में ये गलती की, तो मैं परेशान थी। तो प्रभु इन वचनों से मुझे एक सुझाव दे रहे थे कि मुझे कैसे आगे के कदम लेने हैं। And in those days when I was filled with regret that I had wasted a lot of my life doing what I wanted to do, that time God encouraged me and comforted me using these verses. वो यहाँ पे कह रहे थे कि शांत रहना है, मुझे चुप रहना है, कुछ समय के लिए मुझे बिल्कुल चुप रहना है और चुप रह के मुझे परमेश्वर का इंतजार करना है। प्रभु के योजना को जानने के लिए मुझे चुप रह के इंतजार करना है। And that is what God was saying, that I should remain silent and I should wait and seek what the Lord's will is. और यहाँ पे हम लोग और एक वचन देखते हैं कि वहाँ पे कहता है कि पुरुष के लिए जवानी में खाना भला है। And another verse, which is verse 27, it says that it is good for a man that he should bear the yoke in his youth. उस वक्त सही वचन मेरे जीवन में प्रभु ने दिया, उस समय वैसे ही परिस्थिति में थी कि मुझे जुआ उठाना था। And God gave me a right word in that situation because I was facing a similar situation and I had to bear the yoke. जुआ उठाने का मतलब प्रभु ने मुझे समझाया कि मुझे प्रभु में अनुशासित रहना है। Can you repeat, sister? जुआ उठाने का मतलब प्रभु ने मुझे समझाया था कि प्रभु में मुझे अनुशासित रहना है। And God showed me that taking up my yoke means I have to be disciplined in the Lord. प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस वचन के, और मैंने खुद को प्रभु के हाथों में सौंपा और मैं बिल्कुल खामोश हुई परमेश्वर के सामने में। मैं इस वचन के अनुसार चुपचाप रह के बस प्रभु की बातों को सुनना चाहती थी, प्रभु की योजनाओं को जानना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले मैं अपनी बातों को परमेश्वर को बताती थी, लेकिन आज प्रभु मैं सुनना चाहती हूँ कि प्रभु मुझे क्या कहते हैं। And according to this verse, I decided to stay silent and to see what God wants to say to me and obey that. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक के बाद एक ऐसे बहुत से जगह से प्रभु इनकरेज किया, जैसे कि भजन संहिता 62 का 5 में भी लिखा है और भजन संहिता 37 का 7 में भी लिखा है कि धीरज से परमेश्वर की प्रतीक्षा करना भला है। After that also God encouraged me using many verses from the Psalms also, which said that I should wait patiently or I should wait silently for the Lord. एक वचन करके मैं समाप्त करना चाहूंगी जो मेरे जीवन में लाभदायक साबित हुआ, वो है यशाया 30 अध्याय उसका 21वां वचन। And there's one more verse that I would like to read, that is Isaiah chapter 30 verse 21. इसमें लिखा है कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जब तुम दाईं ओर या ओर मोड़ने लगो, तो जिस चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा और तेरे कानों के पीछे से ये सब तुम सुन पाओगे कि यही मार्ग है, इसी में चलो। And the verse says, your ears will hear a word behind you. This is the way, walk in it, whenever you turn to the right or to the left. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर उस समय में मुझे अगुवाई किए इन वचनों के द्वारा से, और मैं एक स्टेप में परमेश्वर की अगुवाई पाके आगे बढ़ी, और मैं जहाँ हूँ आज उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। And after that God led me step by step, and I thank God where He has brought me so far. एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आपने प्रभु की आवाज को सुना,
तो मैंने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर के आवाज को ऐसे नहीं सुन सकती, लेकिन परमेश्वर अपने वचन से, अपनी आत्मा से और अपने दासों के द्वारा से कई बार मुझसे बातें किए। And once somebody asked me that, have I heard God speak? So I said that we can't hear God's voice that way, but it is only through His word, through His Spirit, and through His servants that God leads us. प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। I praise God.